السلام علیکم ناظرین، روبی نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد اختر۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ تلنگانہ قانون ساز اسمبلی کا بجٹ اجلاس جاری، مطالبات زر پر مباحث میں اراکین نے لیا حصہ، وقفہ سوالات کے دوران ریاستی وزراء نے دیا جواب۔ عثمانیہ یونیورسٹی نے ڈگری اور پی جی کے تمام امتحانات منسوخ کر دیے، نئی تواریخ کا کیا جائے گا اعلان۔ عالمی یوم ٹی بی کے سلسلے میں ٹی بی ہاسپٹل دبیل پورہ میں منعقد کی گئی تقریب، کلکٹر حیدرآباد نے کی شرکت۔ سرقے کی وارداتوں میں ملوث نیپالی ٹولی گرفتار، 13,20,000 روپے مالیتی اشیاء برآمد، ناچارام پولیس اور سی سی ایس ملکاجگیری زون کی کارروائی۔ صحافت میں خواتین کی نمائندگی کو بڑھایا جائے، اردو یونیورسٹی میں منعقدہ ویبنار سے معروف صحافیوں کا خطاب۔ اب خبریں تفصیل سے۔ تلنگانہ قانون ساز اسمبلی کا بجٹ اجلاس جاری ہے۔ چہارشنبے کو بھی مطالبات زر پر مباحث ہوئے، جس میں مجلسی اراکین اسمبلی نے سوالات اٹھائے۔ نیز ریاستی وزراء نے وقفہ سوالات میں پوچھے گئے سوالات کے جوابات بھی دیے۔ واضح رہے کہ ایجنڈے کے مطابق قانون ساز اسمبلی کے بجٹ اجلاس کی کارروائی 26 مارچ تک جاری رہے گی۔ وزیر صحت ای راجندر نے ایوان میں وقفہ سوالات کے دوران ٹی آر ایس اراکین اسمبلی اے نریندر، گنیش گپتا اور دھرما ریڈی کے پوچھے گئے سوال کا جواب دیتے ہوئے بتایا کہ تلنگانہ حکومت نے گریٹر حیدرآباد میں 10,000 کی آبادی پر مشتمل علاقے میں ایک بستی دواخانہ قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس میں ایک ڈاکٹر، اسٹاف نرس اور اٹینڈر کو متعین کرتے ہوئے مفت دوائیں، معائنے اور علاج کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے، جس کے تحت فی الحال 250 بستی دواخانے قائم کیے گئے ہیں، جبکہ حکومت کے پاس حیدرآباد میں 350 بستی دواخانے قائم کرنے کا منصوبہ ہے۔ انہوں نے ٹی آر ایس اراکین اسمبلی کو تیقن دیا کہ بہت جلد ریاست کے دیگر اضلاع کریم نگر، نظام آباد، ورنگل اور دوسرے اضلاع میں بھی بستی دواخانے قائم کیے جائیں گے۔ اس تعلق سے ریاستی وزیر کے ٹی راما راؤ نے پہلے ہی تیقن دیا ہے۔ قبل ازیں ٹی آر ایس رکن اسمبلی اے نریندر اور دیگر نے ورنگل میں بستی دواخانے قائم کرنے کی خواہش کرتے ہوئے بتایا کہ ریاست تلنگانہ میں حیدرآباد کے بعد ورنگل ترقیاتی میونسپل کارپوریشن ہے، جہاں بستی دواخانے قائم کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ ప్రేమను పొందగలని, ప్రజలకు ఒక విశ్వాసం కలిగించగలబడిందని చెప్పి వారు దాన్ని ఆదర్శంగా తీసుకొని ఈ బస్తీ దవాఖానాలకు మనం శ్రీకారం చుట్టాం అధ్యక్ష। మొట్టమొదటిగా హైదరాబాద్లో దీన్ని పూర్తి స్థాయిలో ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసిన తర్వాత, ఆ రిజల్ట్స్ చూసిన తర్వాత గ్రాడ్యువల్గా విస్తరించండి, ఒకేసారి అన్ని పెట్టుకోవడం కాకుండా అవి రిజల్ట్స్ చూసిన తర్వాత మనం ఇతర పట్టణాలు కూడా విస్తరిస్తామని చెప్పి వారు చెప్పిన అధ్యక్ష। వారు అప్పుడే 350 బస్తీ దవాఖానాలని శాంక్షన్ చేయడం జరిగింది అధ్యక్ష। దాంట్లో ఇప్పటికే విడుదల వారీగా హైదరాబాద్లో ప్రతి 10,000 జనాభాకి దాదాపు అర్బన్ పిఎస్సీలు ఏవైతే ఉన్నాయో అధ్యక్ష, అందుబాటులో లేనటువంటి ప్రాంతాలలో దాదాపు అర్బన్ పిఎస్సీలకి 3 కిలోమీటర్లు బయట ఈ 10,000 జనాభాకి ఒక బస్తీ దవాఖానా ఏర్పాటు చేయడం అధ్యక్ష। ఇక్కడ ఒక డాక్టర్ ఉంటాడు, ఒక స్టాఫ్ నర్స్ ఉంటుంది, తర్వాత ఒకరు అటెండర్ టైపు ఉంటారు అధ్యక్ష। 3 వ్యక్తులు పనిచేస్తారు। ఆల్మోస్ట్ పిఎస్సీలు గ్రామీణ ప్రాంతాలు ఎట్లా పనిచేస్తాయో। مجلسی رکن اسمبلی احمد بلالہ نے تلنگانہ اسمبلی میں مطالبات زر مباحث کا دوسرے روز آغاز کرتے ہوئے وزیر فینانس ہریش راؤ کی جانب سے تعلیمی شعبے کے لیے 4,000 کروڑ روپے مختص کرنے کا خیر مقدم کرتے ہوئے حکومت اور وزیر تعلیم سے مطالبہ کیا کہ مذکورہ 4,000 کروڑ کی رقم حیدرآباد اور سکندرآباد کے سرکاری اسکولوں کی عمارتوں کی تعمیر، بنیادی سہولتیں اور انفراسٹرکچر فراہم کرنے پر خرچ کیے جائیں اور پہلے مرحلے کے طور پر حیدرآباد، سکندرآباد کے اسکولوں میں کام کا آغاز کیا جائے۔ انہوں نے بتایا کہ کورونا وبا پر صرف تعلیمی ادارے بند کر دینے سے قابو نہیں پایا جا سکتا، بلکہ کورونا کے ساتھ جینے کے لیے حکومت کو اقدامات کرنے پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں کورونا کے رہنمانہ خطوط پر سختی کے ساتھ عمل کیا جانا چاہیے۔
مجلس رکن اسمبلی احمد بلالہ نے ہر سال DSC منعقد کرتے ہوئے اساتذہ کے تقررات کرنے، اردو میڈیم اسکولوں کی حالت کو بہتر بنانے، چنچل گوڑہ اور فلک نما کالجز کو مثالی بنانے، عثمانیہ یونیورسٹی کے بجٹ میں اضافہ کرنے، نظامیہ طبی کالج میں زیر تعلیم العارف کالج کے طلبہ کو ماہانہ وظائف دینے کا مطالبہ کیا۔ علاوہ ازیں چار مینار پیدل راہرو پروجیکٹ کے کاموں کو پائے تکمیل کرنے، عثمانیہ ہاسپٹل کی تاریخی عمارت کو برقرار رکھتے ہوئے نئی عمارت تعمیر کرنے، نوجوانوں کو بے روزگاری الاؤنس فراہم کرنے، ملک پیٹ اور یلہ گوڑہ میں ٹاورز قائم کرنے کے علاوہ گریٹر حیدرآباد کے تمام 15 اسمبلی حلقوں میں اسپورٹس کمپلیکس قائم کرنے کا بھی رکن اسمبلی احمد بلالہ نے مطالبہ کیا۔ Covering school, higher and technical education, sports and youth service, medical and health, labor, employment, religious endowment, forest, industries, etc. اسپیکر صاحب، میں فائنانس منسٹر صاحب کے اس اعلان کا خیر مقدم کرتا ہوں جنہوں نے ایجوکیشن کے لیے 4000 کروڑ بشمول 2021 اور 22 کے 2000 کروڑ کی سہولت کے لیے، بیسک کمیونٹیز کی سہولت کے لیے مختص کیا ہے۔ اس اسکیم کے تحت نئے اسکول بلڈنگز تعمیر کیے جائیں گے، پرانے اسکولوں کی مرمت کی جائے گی، اور جو اسکول کے اندر بیسک کمیونٹیز نہیں ہیں اس کے کام کروائے جائیں گے، فرنیچر مہیا کرایا جائے گا۔ میں حکومت سے گزارش کرتا ہوں کہ اس ضمن میں سب سے پہلے بنیادی سہولتوں کا کام، فرنیچر کا کام، اسکول بلڈنگز کا کام اگر سب سے زیادہ کوئی خستہ حالت میں ہے تو وہ حیدرآباد اور سکندرآباد میں ہے۔ میں یہ بھی کہوں گا کہ دیگر 32 ڈسٹرکٹس کے اندر پھر بھی حیدرآباد اور سکندرآباد کے سرکاری مدارس سے زیادہ بہتر حالت ہے۔ تو میں حکومت سے گزارش کروں گا کہ اس کے اندر جو اماؤنٹ اسکول کے ریپیئرز کے لیے اور بنیادی سہولتوں کے لیے اور نئی بلڈنگز کے لیے دیے جا رہے ہیں، پہلے مرحلے کے اندر اس کو حیدرآباد اور سکندرآباد کے اسکولز کے لیے استعمال کیا جائے۔ دوسرے مرحلے میں آپ بے شک دیگر 32 ڈسٹرکٹ کے اسکولوں کو ٹیک اپ کر سکتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ یہاں پر کے اسکولز کی حالت بہت خستہ ہے، تو اس لیے ہم یہ گزارش کریں گے کہ پہلے مرحلے میں حیدرآباد اور سکندرآباد کے گورنمنٹ اسکولز کی بنیادی سہولتوں کے اوپر توجہ دی جائے، نئے اسکول کے بلڈنگز بنائی جائے تاکہ یہاں کا سرکاری اسکولوں کا نظام اور بہتر ہو سکے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تلنگانہ فارمیشن کے بعد جو ریسیڈنٹ اسکولز تلنگانہ کے قیام سے پہلے تلنگانہ کے ہمارے علاقے کے اندر صرف 298 ریسیڈنشیل اسکولز تھے۔ آج تلنگانہ قائم ہونے کے بعد اس حکومت کی اہم توجہ کی طرف سے ایجوکیشن کے اوپر بشمول اقلیتیں اور BC ریسیڈنشیل اسکولز ملا کر آج تلنگانہ کے اندر 970 ریسیڈنشیل اسکولز ہے۔ ہم اس کی ستائش کرتے ہیں اور ہم یہ بہترین اقدام ہے، اور اس اسکولز کے اندر قریب 4,30,000 طلبہ پڑھتے ہیں، اور یہ 4,30,000 طلبہ کے اوپر یہ حکومت سالانہ ایک طلبہ کے اوپر 1 لاکھ سے زیادہ خرچہ کر رہی ہے۔ یہ کارپوریٹ ٹرسٹ کے اسکولز کے اوپر اس کے اوپر کام کیا جا رہا ہے، یہ بہت اچھی بات ہے، ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے مائنرٹی اسکولز ہو یا BC اسکولز ہو، جو گورنمنٹ جو پرائیویٹ بلڈنگز کے اندر لاکھوں روپے کرایہ دیا جا رہا ہے، اس کو گورنمنٹ اس سال جو بجٹ رکھی ہے اس سے ہم ریسیڈنشیل نئے اسکولز، گورنمنٹ کے خود کے نئے اسکولز، نئے بلڈنگز تعمیر کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہم آپ سے یہی گزارش کریں گے کہ آپ اس کے اوپر توجہ دیں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ یہاں پر نئے بلڈنگز بنا سکیں۔ شہر کے اندر گورنمنٹ سروے کے حساب سے 9,997 ایڈیشنل کلاس رومز کی ضرورت ہے، اور اور اس کے لیے ہم کو کام کرنا ہے۔ دیواریں خستہ حالت میں ہیں، سیکنڈری اسکول نیڈ کمپیوٹر لیبس، سائنس لیبس، یہ تمام چیزوں کے لیے پہلے مرحلے کے اندر کام کیا جائے تاکہ حیدرآباد اور سکندرآباد کا ایجوکیشن کے اندر ہم اور
बेहतरी ला सके। The budgetary allocation of rupees 13,573 crores for education for sector of Telangana comes to 6.78%. मैं हुकूमत के सामने और इस हाउस के सामने ये बात मिलाना चाहूँगा कि 2014 के बजट के अंदर जब तेलंगाना कायम हुआ तो टोटल बजट का 10% से ज़्यादा हमने एजुकेशन के लिए अलॉकेट किया था। आज वो घटते घटते 6.78% हो गया है। तो इस जबकि आपको जानना चाहिए कि मुत्तहिदा रियासत के अंदर एजुकेशन के ऊपर 14% बजट रखा गया था। ये और बात है कि तेलंगाना के इलाकों को उन्होंने नज़रअंदाज किया, यहाँ पर उसका सरफा पैसे का नहीं किया गया। आज ज़रूरत इस बात की है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा, हमारे बजट का ज़्यादा हिस्सा हम एजुकेशन के ऊपर हम सर्फ करें ताकि बेहतरीन नताइज निकल सके। आप 2011 के सेंसस के स्टैटिस्टिक्स से कि 2014 के सेंसस के हिसाब से तेलंगाना का लिटरेसी परसेंटेज रेट 66.54% था, जबकि पूरे हिंदुस्तान का लिटरेसी रेट 74% था 2011 के सेंसस के हिसाब से। 2020 के अंदर जो स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से जो 2020 के अंदर जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैट्स ने जो सर्वे किया उसके हिसाब से तेलंगाना रूरल के अंदर आज मेल्स का 70.6% लिटरेसी रेट है और फीमेल का 53.7% है, और तेलंगाना अर्बन के अंदर मेल्स का 91.7 है और फीमेल्स का 79 है। तो इसको हम और बेहतर इसका परसेंटेज बना सकते हैं अगर ये हुकूमत काम करने के लिए हुकूमत कोशिश कर रही है। और मुझे यकीन है कि अगर से एजुकेशन के ऊपर ये हुकूमत संजीदगी से और काम करेगी तो आने वाले दिनों में हम केरला से आगे हमारा लिटरेसी रेट होगा। इसके लिए ज़रूरत इस बात की है कि हम और ज़्यादा इसके अंदर फंड अलोकेट करें, बजट अलोकेट करें। और साथ ही साथ मैं आपसे ये भी कहूँगा कि टीचर्स के अंदर रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर्स इज ऑल्सो अ मैटर ऑफ कंसर्न। स्पीकर साहब, नोटिफिकेशन इशू हुआ था 8,792 पोस्ट के लिए 2017 के अंदर। हाईकोर्ट ऑफ तेलंगाना ने इसके अंदर इंटरवेन किया और कहा कि रिक्रूटमेंट करने की ज़रूरत है। और सबसे ज़्यादा उसके बाद से अब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, कोई डीएससी एग्ज़ाम नहीं हुआ। तो आज ज़रूरत इस बात की है कि हम हर साल अपना डीएससी कंडक्ट करें ताकि हम जो खाली जायदादें हैं, जो वैकेंसीज हैं, उसको पुर कर सकें। यूनिवर्सिटीज़ का हाल ये है कि तमाम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आईएएस ऑफिसर्स को लेकर जाकर वाइस चांसलर्स की जगह बिठा दिया गया, जिसकी वजह से वो बराबर टाइम जाकर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर नहीं दे रहे हैं। एजुकेशन यूनिवर्सिटीज़ की हालत और ख़राब होते जा रही है। जबकि सर्च कमेटी रिपोर्टेडली सबमिटेड द रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट के वाइस चांसलर्स को अपॉइंट किया जाए। मैं हुकूमत से गुजारिश करूंगा कि बहुत देर हो चुकी है, आप जल्द से जल्द वाइस चांसलर्स का तकर्रुर कीजिए यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ताकि यूनिवर्सिटीज़ की हालत बेहतर हो सके। उस्मानिया यूनिवर्सिटीज़ के अंदर उस्मानिया यूनिवर्सिटी के लिए 353 करोड़ रुपए अलाट किए गए, पालामुर यूनिवर्सिटी के लिए 7 करोड़। तो बहरहाल जुमला यूनिवर्सिटीज़ के लिए 551 करोड़ अलाट किए गए। मैं ये कहूँगा कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी एक हमारे लिए एक तारीख़ी मुकाम है, एक प्राइड ऑफ तेलंगाना है उस्मानिया यूनिवर्सिटी। उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा फंड अलोकेट कीजिए। उसके अंदर साइंस और कॉमर्स के लिए, उसके अंदर और तरक्की के लिए काम कीजिए, उसका कैंपस डेवलपमेंट के लिए काम कीजिए ताकि उस्मानिया यूनिवर्सिटी से और बेहतर नताइज हमको मिल सकें। तेलंगाना के अंदर उर्दू मीडियम के हज़ारों पोस्ट वैकेंट है। कई साल से हम मुसलसल नुमाइंदगी कर रहे हैं, उसके लिए डीएससी कंडक्ट नहीं की जा रही है। एक छोटी सी बात आपके सामने बताता चलूं, सेल्फ फाइनेंस के ऊपर यहाँ पर उर्दू मीडियम के 15 जूनियर कॉलेजेस के अंदर 69 तुलबा काम कर रहे थे, उनको लेक्चरर्स काम कर रहे थे। उनको रेगुलर करने के लिए अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने उसके ऊपर लेटर दिया,
तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर उनको रखने के लिए कहा गया, लेकिन हुकूमत की जानिब से कोई उसके ऊपर इक़दाम नहीं किया गया। गवर्नमेंट कॉलेज के आज उन लोगों को बजाय कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर देने के उन 15 जूनियर कॉलेज के 69 लेक्चरर्स को आज कहा जा रहा है कि आप गेस्ट फैकल्टी के हिसाब से काम करें, गेस्ट लेक्चर के हिसाब से काम करें। ये उनके साथ नाइंसाफ़ी है मैडम, कि उनके साथ भी इंसाफ किया जाए कि वो लोग कई सालों से काम कर रहे हैं, तो उनको सेल्फ फाइनेंस सिस्टम पे काम कर रहे थे, कि उनको कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर लिया जाए और कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, जबकि इसकी फाइल नंबर 1201 ऑफ 1EA1 2019 to 2002 इज पेंडिंग विद प्रिंसिपल सेक्रेटरी पेशी मैडम। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इसको आप जल्द से जल्द किया जाए। वज़ीर पंचायत राज ई दया कराव ने तेलंगाना असम्बली के बजट इजलास में वक्फे सवालात के दौरान पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए बताया कि महात्मा गांधी ने ग्राम पंचायत की तरक्की का जो ख्वाब देखा था उसे तेलंगाना में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पूरा कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत की तरक्की के लिए 5 लाख रुपए की लागत से डंपिंग यार्ड की सहूलत और ट्रैक्टर फराहम करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। वज़ीर पंचायत राज ई दया कराव ने बताया कि ख़ुद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने रियासत में ग्राम पंचायत की तरक्की के लिए किए जाने वाले इक़दाम की सताइश की है। ఏకైక ముఖ్యమంత్రి గారు కేసీఆర్ గారే గిరిజనులకు ఆరాధ్య దైవంగా తండలను గ్రామ పంచాయతీ చేసిన ఘనత ఇవాళ కేసీఆర్ గారికి దక్కుతుందని కూడా ఈ సందర్భంగా మీకు తెలియజేస్తున్నాం। గ్రామ పంచాయతీలు మొత్తం 12,751 గ్రామ పంచాయతీలు ఇప్పుడు కొత్తగా ఏర్పడ్డ వాటితోటి కొత్తగా ఏర్పడ్డాయి 4,383। వీటిలో కొత్తగా మైదానం అంటే షెడ్యూల్ ప్రాంతంలో కానీ 100% జనాభా ఎస్టీ జనాభా ఉన్నాయి। वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने तेलंगाना असम्बली के बजट इजलास में वक्फे सवालात के दौरान TRS रुकन असम्बली मुत्ती रेड्डी के पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने बासिर में क़ायम IIIT में 2018 में 500 नशिस्तों का इजाफा करते हुए 1500 नशिस्तें की थीं, उसमें मज़ीद इजाफा करने का उन्होंने तयख़ुन दिया। उन्होंने बताया कि बासिर का IIIT मुल्क भर में 36वां मुक़ाम रखता है। क़ब्ल अज़ीं TRS रुकन असम्बली मुत्ती रेड्डी ने वज़ीर तालीम से मुतालबा किया कि बासिर में मौजूद 1500 नशिस्तें नाकाफ़ी हो रही हैं, उसमें मज़ीद 500 नशिस्तों का इजाफा किया जाना चाहिए। Adyaksha, I beg to move that the government be granted a sum not exceeding rupees 11,693 crores 8 lakhs 92,000 under demand number 12 school education. Adyaksha, I beg to move that the government be granted a sum not exceeding rupees 1,592 crores 77 lakhs 73,000 under demand number 13 higher education. Adyaksha. रियासती वज़ीर सिनेमाटोग्राफी श्रीनिवास यादव ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि कोरोना वबा की वजह से फ़िलहाल थिएटर सिनेमा हॉल्स बंद करने का हुकूमत के पास कोई मंसूबा नहीं है, लेकिन उन्होंने सिनेमा हॉल्स और थिएटर्स के ज़िम्मेदारों से अपील की कि वो सैनिटाइजेशन के अलावा कोरोना के रहनुमाना खतूत पर सख्ती के साथ अमल करें। తెలుగు చలనచిత్ర పరిశ్రమ మరి ఇప్పటికే కరోనా వైరస్ మూలాన ఎంతో పెద్ద ఎత్తున నష్టం జరిగింది। మరి ఇండస్ట్రీలో ఉన్నటువంటి టెక్నీషియన్స్తో పాటు మరి క్లాస్ 4th కానివ్వండి 24 క్రాఫ్ట్స్ కానివ్వండి కొన్ని వేలాది మంది మరి రోడ్డున పడ్డటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయి। ప్రభుత్వం కొంత అన్ని విధాలుగా ఆదుకున్నప్పటికీ మరి కొన్ని లక్షలాది మంది జీవితాలు దీని మీద ఆధారపడి ఉన్నాయి కాబట్టి కొన్ని రూమర్స్ స్ప్రెడ్ అవుతున్నాయి, మళ్ళా థియేటర్స్ బంద్ చేస్తారని। థియేటర్స్ ఎక్కడ బంద్ చేయరు, గవర్నమెంట్ ఏ నిర్ణయం తీసుకోలేదు। కాబట్టి కోవిడ్ నిబంధనల మేరకు ఎట్లయితే ఇప్పుడు థియేటర్స్ నడుస్తున్నాయో అది యథావిధిగా థియేటర్లు కొనసాగుతాయి। దయచేసి రూమర్స్ని ఎవరు పట్టించుకోవద్దని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను। ఈరోజు సినిమా ఇండస్ట్రీకి సంబంధించినటువంటి మరి
सदरनशीन आला तालीम पापी रेड्डी ने बताया कि रियासत में कोरोना वबा के पेश नज़र डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट इम्तहानात को मुलतवी करने का फ़ैसला किया गया है, जो उस्मानिया यूनिवर्सिटी, काकतिया यूनिवर्सिटी और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के तहत मुनक़िद होने वाले थे। ताहम तमाम डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट इम्तहानात मुलतवी कर दिए गए। वाज़ेह है कि रियासत भर में चारशंबे के रोज़ से डिग्री इम्तहानात का इनेकाद अमल में आया था, लेकिन आइंदा के इम्तहानात मुलतवी कर दिए गए और हुकूमत ने तमाम तालीमी इदारे बंद करने का पहले ही फैसला लिया है। दुनिया भर में आज आलमी यौम टीबी डे मनाया जा रहा है। इस मौके पर हैदराबाद के दबिलपुरा टीबी हॉस्पिटल में भी तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें टीबी पर काबू पाने के लिए किए जा रहे इक़दामात से वाकिफ़ करवाया गया। कलेक्टर हैदराबाद शिवता मोहंती के अलावा हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और शोबे सेहत के ओहदेदार भी इस मौके पर मौजूद थे। इस मौके पर कलेक्टर शिवता मोहंती ने कहा कि गैर मुकामी वर्कर्स की बड़ी तादाद हैदराबाद में मुक़ीम है और ये लोग एक मुकाम से दूसरे मुकाम मुंतकिल होते रहते हैं। अगर उनमें से कोई टीबी से मुतासिर होता है तो उसका पता चलाना मुश्किल होता है और टीबी एक मुतादी बीमारी है, इसलिए इस पर काबू पाना भी एक चैलेंज है। कलेक्टर ने कहा कि अगर हम टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट पर तवज्जो देंगे तो हम इस पर काबू पा सकते हैं और जिस तरह से हमने कोरोना पर काबू पाने के लिए जस्तजू की है, इसी तरह हम टीबी पर भी काबू पा सकते हैं। ఇప్పుడు మేము గత సంవత్సరంలో మీరు అందరూ నాకంటే మీ అందరూ చూశారు ఈ హెల్త్కి ఎంత ప్రయారిటీ మేము ఇవ్వాలి. రెండవది హెల్త్ ఒక పాండమిక్ లాగా ఏదో ఒకటి ఇన్సిడెంట్ జరిగితే ఎలా నార్మల్ లైఫ్ పూర్తిగా డీరేల్ అయిపోతుంది. సో ద వే కరోనా హ్యాస్ టాట్ us many things. కరోనా గత సంవత్సరంలో మేము చూసాము కి బికాస్ ఆఫ్ అ హెల్త్ పాండమిక్ ది ఎంటైర్ వరల్డ్ హ్యాస్ కమ్ టు పీరియడ్ 6 months మెడికేషన్ తీసుకోవడం, అది ఫాలో అప్ చేయడం అండ్ ఫైనలీ నోటిఫికేషన్ దట్ ది పర్సన్ హ్యాస్ టర్న్డ్ నెగటివ్. దట్ ఈస్ అ లాంగ్ డ్రాన్ ప్రాసెస్. సో పబ్లిక్ మన హెల్త్ స్టాఫ్ పైన ఒక బాధ్యత ఉంటుంది టు ఎంగేజ్. हल्का असम्बली राजेंद्र नगर के बल्दी डिवीजन शास्त्रीपुरम में मजलिसी इंचार्ज मिर्ज़ार अहमद बेग और डिवीजन कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन ने पैदल दौरा करते हुए आवाम से मुलाकात की और मुख्तलिफ मसाइल का जायजा लिया। किंग्स कॉलोनी फेज़ 4 में किए गए इस दौरे के दौरान वाटर पाइपलाइन के कामों का मुआयना किया गया, जबकि सीवरेज लाइन व दीगर कामों के अलावा मज़कूरा डिवीजन में नाले के तामीरी काम भी जारी हैं। मिर्ज़ार अहमद बेग और कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन के मुताबिक मज़कूरा नाले का काम 2 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से किया जा रहा है और नाले के तामीरी काम मुकम्मल होने के बाद सीवरेज लाइंस को से जोड़ दिया जाएगा, जिससे काफ़ी मसाइल हल हो जाएंगे। इस दौरे के मौके पर मिर्ज़ार अहमद बेग, कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन के अलावा मुकामी सुदूर इब्तिदाई गफ्फार खान हबीब और सज्जाद के अलावा दीगर भी मौजूद थे। शब बारात की आमद के पेश नज़र मुख्तलिफ डिवीजन्स में वाक़ क़ब्रस्तानों की साफ़ सफाई के काम जारी हैं। इस सिलसिले के तहत नुमाइंदा डिवीजन कॉरपोरेटर ओल्ड मलकपेट मोहम्मद सैफुद्दीन शफ़ी ने इलाके के मुख्तलिफ क़ब्रस्तानों का मुआयना किया, जहाँ झाड़ियों की कटवाई और दीगर काम जारी हैं। इस मौके पर GHMC ओहदेदारान राधिका ई वेंकन्ना, GHMC ई के अलावा वर्क इंस्पेक्टर सत्य नारायणा और सरगरम मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। अभी इतने साल से करो, कभी भी इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ। कभी भी करो इनका घर यहाँ खरीफ में कॉर्पोरेटर का लोग आते यही बोलते पूरे हमारे लोग दफन है, इसमें बस्ती के लोग दफन है। अरे क्या कर रहे हैं भाई, बोलते फादर भी यही से। अब क्या की कहा दिए जैसा हम लोग इसमें क्या क्या रहता, हमारा भी नाम खराब हो रहा है, इसमें आपका नाम भी खराब हो रहा वही बोल रहे, मैं भी क्या बोल रही हूँ। करो या पूरा सही करो भाई, नहीं तुम लोग को तो मालूम ना भाई। डाल देना तुम।
साइबर क्राइम पुलिस रच्चाकुंडा ने ऑनलाइन धोखाधड़ी के सिलसिले में एक मुलजिम को हिरासत में लिया, जिसने बैंक खातेदारों की तफसीलात का सरखा करते हुए खर्च के लिए उनको फ़ोन कॉल कर रहा था। डीसीपी मलकाजगिरी जोन ने बताया कि 40 साला कोत्तापल्ली अशोक को इस सिलसिले में हिरासत में लिया गया और मुख्तलिफ अशिया जब्त की गई। इसी तर्ज पर नाचारम पुलिस और CCS मलकाजगिरी जोन ने मुश्तरका तौर पर कार्रवाई करते हुए सरखे की वारदातों में मुलविस नेपाली टोली को हिरासत में लिया और उनके कब्जे से 13,20,000 रुपये पर मुश्तमिल अशिया बरामद की गई। गिरफ्तार शुदा टोली अराकीन में बहादुर कामी, राम बहादुर, अशोक किरण सिंह, विश्वकर्मा सागर और टी भानवी शामिल हैं। అంటే ఓకేనా ఎనీ ప్రాబ్లం మీరు వెళ్ళండి సార్, మీరు కొంచెం దగ్గర ఉండండి. నా రైట్ మాస్క్ తీసేసి అసలు ఆ టీవీ తీసేస్తే మీరు హ్యాపీగా ఉంటారు సార్. దే అడ్మిటెడ్ దట్ ఈ క్రైమ్స్ అని మేము చేసాము అండ్ వాళ్ళకి ఇద్దరే కాదు ఇంకా నలుగురు కూడా ఇన్వాల్వ్ ఉన్నారు అని. సో వాళ్ళ పేరు వచ్చేసి రామ్ బహదూర్, ఈజ్ లేబరర్గా పనిచేస్తారు. ఈ సబ్సిక్వెంట్లీ యూ కెన్ సీ మేడిపల్లి పిఎస్లో గట్కేసారు లర్కింగ్ బీట్స్ దట్ ఎవ్రీ పోలీస్ స్టేషన్ హ్యాస్ ఆర్గనైజ్డ్. ప్లస్ ఈవెన్ క్రైమ్ వాళ్ళు కూడా బీట్స్ పెట్టారు బికాస్ ఆఫ్ లేట్ కొంచెం చాలా ప్రాపర్టీ ఆఫెన్సెస్ అవుతుంది. దే హ్యావ్ బిన్ గివింగ్ అస్ వెరీ గుడ్ రిజల్ట్స్. అంటే దిస్ షోస్ ది అలర్ట్నెస్ ఆఫ్ ద బీట్స్ వర్కింగ్ ఇన్ ద నైట్. సో మనకి ఎస్టర్డే 23rd సాయంత్రం టైంలో బీట్స్ ఆర్గనైజ్ చేసింది ఒక బీట్. हबीबनगर पुलिस ने बाइक चोरी में मुलविस 2 अफराद को हिरासत में लेते हुए उन्हें जेल भेज दिया और केस दर्ज किया गया। तफसीलात के मुताबिक जहांगीर और सलीम ने बगैर दस्तावेजात की बाइक सुरेश नामी शख्स को फरोख्त कर दी थी और दस्तावेजात देने के बहाने उसे तलब करते हुए उसकी बाइक छीनकर फरार हो गए। सुरेश ने फौरी हबीबनगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। रेवेन्यू महकमे इंटेलिजेंस के अहदेदारों ने शमशाबाद में वाक़ राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हैदराबाद से दुबई जाने वाले मुसाफिर के कब्जे से 13 करोड़ रुपये बैरूनी करेंसी जब्त कर ली। मुसाफिर की शिनाख्त मोहम्मद की हैसियत से की गई है। बाद अज़ा मुसाफिर को मुतालिका पुलिस के हवाले किया गया। हबीबनगर इलाके में वाक़ मिल्क शेक फ्रेंचाइज की शॉप पर अचानक आतिशज़दगी का हादसा पेश आया। इत्तला मिलते ही मुतालिका पुलिस मुकाम हादसे पर पहुंची और आतिश फ़िरो अमले को तलब किया गया। इस आतिशज़दगी की वजह शॉर्ट सर्किट बताई गई है, जबकि वाक़े में 4 से 5 लाख रुपये नुकसान का तखमीना लगाया गया है। मल्लेपल्ली के नुमाइंदा कॉरपोरेटर जफ़र खान भी मुकाम हादसे पर पहुंची और तफसीलात हासिल की। भाई मैं अंदर बैठे हुआ था, मैं लंच लाने के लिए बिरयानी लाने बाहर निकला, सोते पे ऊपर के लाइट्स नीचे गिरे, फ्रिज को आग लगी, एकदम लगी। मैं देखते फ़ौरन भाई बाजू वालों भाई को आवाज़ दिया हो तो आए, तो आके पूरा पानी डालना शुरू करे। भाई उसमें कुछ भी गलती नहीं थी भाई, वो लाइट्स और फ्रिज को आग लगी। हुआ कैसा है? शॉर्ट सर्किट है भाई, अब हुआ कैसा नहीं मालूम। वो लैपटॉप वो सब पड़े हुआ था भाई, कुछ भी पकड़ा करना चल रहा नहीं था। टाइम एक 45 मिनट्स पहले हुआ भाई। कौन सी दुकान है भाई ये? ओवरडोज है।
रियासती वज़ीर तालीम पी सबीता इंदा रेड्डी की जानिब से तमाम तालीमी इदारों को बंद किए जाने के अहकामात के बाद तेलंगाना सोशल वेलफेयर रेजिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सोसाइटी और बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने अलहदा तौर पर अहकामात जारी करते हुए हॉस्टल्स और कॉलेजेस बंद करने की हिदायत दी है। नेज़ उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने भी डिग्री और पीजी के तमाम इम्तिहानात मनसूख करने का ऐलान किया और प्रेस नोट जारी करते हुए बताया गया कि नई तवारीख का बाद अज़ां ऐलान किया जाएगा। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। रियासत तेलंगाना में आज फिर कोविड के केसेस में इजाफा हुआ है और रियासती वज़ीर सेहत की तरफ से जारी किए गए आदाद व शुमार के मुताबिक आज 431 नए केसेस और 2 अमवात की तस्दीक की गई। जुमला अमवात 1676 हो गई। जुमला केसेस की तादाद 3,04,298 हो गई। डिस्चार्ज मरीजों की तादाद 2,99,270 हुई है। आज सुबह 228 मरीजों को डिस्चार्ज दिया गया। एक्टिव केसेस 3,352 बताए गए हैं, जबकि हैदराबाद में 111 नए केसेस सामने आए। चौरासी साला अलहाज मोहम्मद आजम खान वन मरहूम मोहम्मद महबूब खान साकिन अलकापुर टाउनशिप चारशंबे को इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा मस्जिद तौहीद वाक़े गुंबद कुतुब शाही में बाद नमाज इशा अदा की गई, जबकि मुत्तसिल क़ब्रिस्तान में तदफीन अमल में आई। पसमंदगान में 4 फर्जंदान और 2 दुख्तरान शामिल हैं। मरहूम अलहाज मोहम्मद आजम खान HTM न्यूज़ के सरबराह मोहम्मद अकबर खान के वालिद बुजुर्गवार थे। मज़ीद तफसीलात के लिए मोबाइल नंबर 9701030033 पर रब्त किया जा सकता है। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हुदूद के इलाके में शौहर ने हालत नशे में बीवी का गला दबाकर कत्ल कर दिया। मुतालिका पुलिस के मुताबिक रवि नामी शख्स की शादी 26 साला सिमता से साल 2017 में हुई थी और अक्सर और बेशतर रवि की हालत नशे में घर आने पर दोनों के दरमियान बहस व तकरार होती थी। मंगल की रात भी ऐसी ही बहस व तकरार के दरमियान रवि ने सिमता का गला दबाकर कत्ल कर दिया और राह फरार इख्तियार की। इत्तला मिलते ही राजेंद्र नगर पुलिस ने मुकाम वाक़े पर पहुंचकर नाश को बगैर से पोस्टमार्टम दवाखाना मुंतकिल किया और इस सिलसिले में ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी गई। పెసర్ల సమత వయసు 29 సంవత్సరాలు. ఈమెకు 2017 సంవత్సరంలో పెసర్ల రవితో వివాహం జరిగింది. వివాహం అయిన తర్వాత ఇద్దరు కూడా ఇక్కడే హైదరాబాద్లో బతుకుతున్నారు. నేటు ఆసిఫాబాద్. రవి కార్ డ్రైవర్గా పనిచేస్తున్నాడు. సమత గృహిణిగా ఉంటుంది. వీళ్ళకు 3 సంవత్సరాల బాబు కలడు. అయితే గత కొన్ని రోజుల నుంచి రవి తాగుడుకు బానిసై ప్రతిరోజు బాగా తాగి వచ్చి భార్యను కొడుతూ వేధించడం చేస్తూ ఉన్నాడు. అదేవిధంగా గత రాత్రి కూడా బాగా తాగి వచ్చి తాగి రావడంతో సమత ప్రతిరోజు ఇట్లా తాగి వచ్చి విధంగా సంసారం ఖరాబ్ అవుతుందని చెప్పడంతో ఆవేశంలో రవి తన భార్య ముక్కు నోరు మూసి ఊపిరాడకుండా చేసి చంపడం జరిగింది. मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम वेबिनार उर्दू मीडिया में सिनफ़ी रिपोर्टिंग चैलेंजेस और मौक़े का इनेकाद अमल में आया, जिसमें मुल्क भर के नामवर सहाफ़ियों को मदऊ किया गया। प्रोफेसर सिद्दीकी मोहम्मद महमूद रजिस्ट्रार इंचार्ज ने सदारत की, जबकि आमिर अली ख़ान न्यूज़ एडिटर सियासत, डॉक्टर सैयद फ़ाज़िल हुसैन परवेज़ एडिटर गवाह वीकली, आरिफा खानम दी वायर न्यूज़, आयशा खानम सीनियर सहाफ़ी दूरदर्शन बेंगलुरु और फरहत रज़वी सीनियर जर्नलिस्ट राष्ट्रीय सहारा ने वेबिनार में अपने ख़यालात का खुलकर इजहार किया। प्रोफेसर शाहिदा डायरेक्टर मुतालियात निस्वा ने डॉक्टर A.L. शारदा का तारुफ पेश किया, जबकि प्रोफेसर एहतशाम अहमद ख़ान डीन ने आमिर अली ख़ान और डॉक्टर फ़ाज़िल हुसैन परवेज़ का तारुफ पेश किया। मज़कूरा वेबिनार का इनेकाद शोबे मरकज़ मुतालियात निस्वा और शोबे तरसील आमा व सहाफ़त की जानिब से किया गया, जबकि पॉपुलेशन फ़र्स्ट अक़वाम मुत्तहिदा आबादी फ़ंड और नॉर्वेन एम्बेसी ने इसके इनेकाद में अपना ताउन पेश किया। शुरा ने इस बात पर जोर दिया
کہ صحافت میں خواتین کی نمائندگی میں اضافہ کیا جائے کیونکہ ظلم اور ناانصافی کے خلاف احتجاج میں خواتین کا قائدانہ رول رہا ہے۔ پروفیسر محمد فریاد صدر شعبہ ترسیل عامہ و صحافت نے کارروائی چلائی۔ پر ہفتہ وار شائع ہوتا تھا، اس میں فوج کی نقل و حرکت، افسروں کے تعین اور تبادلے کی اطلاعات درج ہوتی تھی۔ یہ 5 سال تک پابندی کے ساتھ شائع ہوتا رہا۔ ٹیپو سلطان کی شہادت کے بعد انگریزوں نے پریس اور فوجی اخبار کی تمام فائلوں کو ضبط کر لیا اور اسے یاد رکھا۔ اردو صحافت کے آغاز سے متعلق کئی متضاد دعوے کیے گئے ہیں۔ کسی نے مولوی محمد باقر کے سر اس کا سہرا باندھا۔ مولوی محمد باقر کا اردو اخبار دہلی سے 1836 سے 1857 تک جاری رہا۔ بعض کا یہ دعویٰ ہے کہ اردو کا پہلا اخبار آگرہ اخبار ہے جو اکبر آباد سے 1831 میں جاری ہوا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اردو کا سب سے پہلا اخبار جامع جہانما کا ضمیمہ تھا جو 29 مارچ 1823 کو جاری ہوا اور 1824 تک نکلتا رہا، پھر بند ہو کر دوبارہ 1825 میں۔ یہ کیسے ہو گیا؟ یہ ویلی، یہ حصہ تو مجھے بالکل بلیک نظر آ رہا ہے، اور بلیک تو مجھے بالکل پسند نہیں ہے۔ کیا اسی ویلی میں بلیک حصہ بھی ہے؟ تو کہا کہ ابھی آپ کدھر دیکھ رہے تھے؟ تو کہا رائٹ میں دیکھ رہا تھا، پنک نظر آ رہا تھا، اب میں لیفٹ میں دیکھ رہا ہوں تو مجھے بلیک نظر آ رہا۔ کہا کہ بیٹا آپ رائٹ پر بھی دیکھو ذرا۔ بیٹے نے رائٹ پر دیکھا تو اب وہاں پنک کلر نہیں تھا، وہاں پر بلیک نظر آ رہا تھا۔ بچے نے کہا کہ ابو کیا ہو گیا، یہ اس کا تو رنگ ہی بدل گیا، یہ بلیک مجھے بالکل پسند نہیں ہے، آپ بالکل بدل دیجیے اس رنگ۔ جو میڈیا ایکچولی ہمارے سماج کی عکاسی کرتا ہے، 4th پلر ہے ہمارا، اور یہ چاہیے کہ صحیح ڈائریکشن دے ریڈرز کو۔ یہ مقصد ہمارا ہے کہ تھوڑا سا سینسٹائز ہم جینڈر کی طرف بھی ہو جائیں، صنفی تشدد کو سمجھیں، جو اندیکھا ہوتا ہے، انویسیبل ہوتا ہے، بالکل ہی چھپا ہوا ہوتا ہے۔ اکثر صرف مار پیٹ ہی وائلنس نہیں ہوتا، لیکن آپ کا اپروچ خود بتاتا ہے کہ آپ کا مطلب آپ میں وہ ڈویزیو فورسز کام کر رہی ہیں، یو آر ڈسکریمنیٹری، آپ کی ذہن میں، آپ کی ذہنیت۔ آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ تلنگانہ قانون ساز اسمبلی کا بجٹ اجلاس جاری، مطالبات زر پر مباحث میں اراکین نے لیا حصہ، وقفہ سوالات کے دوران ریاستی وزراء نے دیا جواب۔ عثمانیہ یونیورسٹی نے ڈگری اور پی جی کے تمام امتحانات منسوخ کر دیے، نئی تواریخ کا کیا جائے گا اعلان۔ عالمی یوم ٹی بی کے سلسلے میں ٹی بی ہاسپٹل دبیل پورہ میں منعقد کی گئی تقریب، کلکٹر حیدرآباد نے کی شرکت۔ سرقے کی وارداتوں میں ملوث نیپالی ٹولی گرفتار، 13,20,000 روپے مالیتی اشیاء برآمد، ناچارام پولیس اور سی سی ایس ملکاجگیری زون کی کارروائی۔ صحافت میں خواتین کی نمائندگی کو بڑھایا جائے، اردو یونیورسٹی میں منعقدہ ویبنار سے معروف صحافیوں کا خطاب۔ ناظرین، روبی نیوز کی فیڈ بیک کے لیے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر آپ کال کر سکتے ہیں یا ای میل کے ذریعے ہمیں پیام بھی بھیج سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ روبی نیوز یہیں اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ روبی نیوز کی ساری ٹیم کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔